جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھی السلام علیکم. دوستو آج ہم راول پنڈی شاہد بھائی کی چھت سے، جو ہمارے پرانے دیرینہ ساتھی ہیں راول پنڈی سے، ہم استاد عبداللہ حاتم پالٹی ہے. اچھا جی، استاد عبداللہ حاتم پارٹی، یعنی کہ جو یو اے میں رہتے ہیں، دبئی میں. استاد عبداللہ حاتم آپ تو جانتے جانی پانی شخصیت ہے جی. ہاں جی، بڑا نام ہے اور بہت جوشیلے پلیئر ہیں. ہاں جی، ان کی چھت سے یہ مطلب وہ پارٹی ہے ان کی. تو یہ جو ہم آپ کو شو کروا رہے ہیں آپ کو کبوتروں کا، پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا ان سے تعلق جو ہے آج کا نہیں ہے. استاد راجہ ریاست محمود عباسی صاحب پنڈوڑا والے مشہور شخصیت ہے. یہ سب انہی کے جو کارندے ہیں. یہ پارٹی تو چلو حاتم صاحب کی ہے، مگر جو کرتا دھرتا ہے وہ راجہ ریاست صاحب ہے. رائے صاحب جی 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 یہ میں آپ سے یہ ہے کہ ہمارے راجہ ریاست شوق کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے عرصہ دراز سے شوق کو راول پنڈی کے شوق سے منسلک رہے ہیں اور بہترین کبوتر پروری کا انہوں نے اعزاز حاصل کیا. جس دور میں شام نہیں ہوتی تھی وہ راجہ ریاست کی چھت سے شام ہوتی تھی. راول پنڈی والوں کو اور استاد صاحب کو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے. ایسے جی ملک محفوظ صاحب نے بھی پہلے اس کی تائید کی تھی کہ راجہ ریاست صاحب کے پاس جو نیلم کبوتر اڑتے تھے، نیلم، اس ٹائم سے ہم ان سے بازی ہم اڑاتے تھے. آپ کا ان کے ساتھ شوق بھی ہوا ہے؟ ہاں 2 سیزن شوق ہوا میرا. اچھا رائے صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے جی. آج آپ کو ایسا چینل ملا ہے برڈ گیلری کا. میں تو چلو ٹھیک ہے، ہم تو ادنا سے کارکن ہیں برڈ گیلری کے. تو نہیں یار روئے روائیں آپ جی، تو یہ کبوتر پروری جو ہے راول پنڈی کی، جو آپ کے بچے یہاں سے آپ چیمپئن بنے ہیں، یہ آپ کی محنت ہے اور آپ نے ان کو بنایا، اس کے بعد یہ بنے. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. تو کبوتر بھی وہی ہیں یا کچھ تبدیلیاں آئی ہیں؟ سارے نئے. اچھا بچوں کے پاس تقریباً سارے نئے ہیں. اچھا آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارے پاس موتیوں والے دن علمیں تھی. آج کل تو یہ دیکھیں نا، یہ کمگر ہے، یہ زیرے ہیں، یہ ٹیڈی ہیں، یہ گولڈن ہے. ماشاء اللہ، آج کل تو دور ان کا جا رہا ہے. زبردست. تو جی شوق کرے گی یہ جو چھت ہے، پہلے آپ ان کو طرف لے جائیں، شاہد بھائی کی طرف. شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ چیمپئن بنے اور موسم گرما سرما جو بھی آپ شوق کرتے ہیں، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو یہ کبوتر جو آپ کے ہیں، یہ کون سی کبوتر ہیں؟ یہ ڈب والا کبوتر ہے. یہ ڈب والا کبوتر شوق کریں سب بدلے ہیں. ماشاء اللہ. ڈب والے کبوتر ہیں جی، یہ دیکھیں. کتنے بچے اوپر ہے؟ یہ مادی دکھائیں جی، ڈب والی. کبے پہ رنگ لگا میڈم مادی. اس میں یہ تو 100% ڈب ہے، ایسا ہی ہے. ماشاء اللہ. یہ دیکھ ان کا پر دیکھ. مادی ہے کیا؟ بدلے کم. مادی ہے. پورا جوڑا ہے. یہ بچہ کس نے بنا پیا؟ کیا بات ہے. اور لگا کے یہ دکھائیں جی، یہ گولڈن کبوتری دیکھیں جی، ماشاء اللہ. یہ ریزلٹنٹ جوڑے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ رزلٹ جوڑے. اچھا. دیکھیں جی، آپ بھی شوق کریں. ہاں جی. تھوڑا کچھ بولے بھی نہیں، اب میرے سے آپ جو بول رہے ہیں تو میں تو نہیں، اس اپنے لیے اپنے حصے کا بولو بھائی. یہ دیکھیں جی، ہماری کیڑی ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ ٹیری مادی ہے جی. یہ بیماری کی وجہ سے آنکھ خراب ہو گئی. یہ داڑھ سائڈ سے خراب ہو گئی. اچھا اچھا. دیکھیں جی، کبوتروں کو سنبھال کر رکھنا، ان کی پرورش کروانا اور ان سے بچے لینا، یہ عام آدمی کا تو کام ہے نہیں. بریڈنگ جو ہے وہ مہارت کا کام ہے. تو اس میں کتنا یہ کامیاب ہے وہ تو رزلٹ بتاتا ہے. ایسا ہی ہے نا سر؟ جی جی ماشاءاللہ. اصل میں یہ جو آپ کبوتر دیکھ رہے ہیں نا، اچھا یہ ہمارے پاس اس وقت موسٹ ریزلٹڈ کبوتر ہیں. اچھا. یہ ان کا ہم نے نام رکھا ہے شرلی بریڈ. شرلی. جی. یہ کم از کم ابھی 30 ایک بچے ہیں میرے اس کے پاس. اوپر میں نے چھوڑے ہوئے ہیں اس جوڑے کو. شرلی کے. شرلی کے. لو جی، شرلی بریڈ
तो ये अपनी इस छत के जो है ना नायाब कबूतर हैं। तो ये देखें जी, मैंने ये कबूतर उस्ताद एहसनपुरी साहब के पास देखे थे फैसलाबाद में, ये कबूतर। अच्छा, जी हाँ जी। तो उन्होंने भी इसी पर में और इसी बॉडी स्ट्रक्चर में कबूतर बनाए थे। तो ज़ाहिर है ये बच्चे भी उस्तादों से सीखते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे कबूतर बनाए हैं। बाबर इसकी आँख। ये हमारी जगह ये पुराने कबूतर हैं, क्या बात है जी। रंग रहा है कलर ना यार, क्या बात शादी की है है। ये देखें जी, इनकी पुरानी ब्रीड है ये। हैं? मुजफ्फर भाई, ये मेरे घर में तकरीबन 30 साल से हैं ये कबूतर। ये वाले ये वाले 30 साल हो गए। जी, इस नस्ल को। ये इस नस्ल को हमारे घर में तकरीबन 30 साल हो गए। बुलबुल है? ये बुलबुले हैं हमारे। ये जी बुलबुले, एक प्रोग्राम तो आता है बुलबुले। तो ये अब कबूतर देखें, इनका देखें आँख और वजूद, और आँख अपने कलर में है। इससे इसकी आँख अपने कलर पे है। ये परफेक्ट कबूतर की निशानी है और मिस ना होते ये ये दे कबूतर। माता जी, उस्ताद जी ये दे ये नर है, वो मादी ये नर है। जो ये भी बुलबुले हैं जी, ये देखें, ये भी बुलबुले, ये चेक करें। ये ओरिजिनल अभी पेयर लगाया हुआ है बैन भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बुलबुले हैं जी, क्या बात। अच्छा जी, शाहिद भाई, ये कबूतर जो है ऊपर से जब निकलते हैं आसमान से, तो क्या एकदम आके बैठते हैं या और भी इनको जान होती है आने के बाद भी? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आके फिट बैठते हैं। अच्छा, ये डीरे नहीं नहीं बैठते नहीं, हैं। मेरा मकसद कहने का बैठने का नहीं, मेरे मकसद कहने का ये कि कबूतर आसमान से हिट लगा के आ रहा है, जी जी, उसके बाद फौरन आके बैठना है नहीं, या फौरन नहीं बैठते हैं। या इसने कुछ और भी चाल चलनी है जैसे? अच्छा जी, ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ पता है, जो कबूतर अपने आप को जिस्म छोड़ के ऊपर आए और नीचे आके फिर उसने कुछ करना है, तो ये जीत 1 सेकंड की हो, 1 मिनट की हो, 2 मिनट की हो या 10 मिनट की हो, तो जीत वही दिलाते हैं कबूतर जो नीचे आके भी घूमते हैं। माशाल्लाह, देखिए जी, कमाल का। ये ले उस्ताद, ये ले उस्ताद जी। तो साहब जी, कबूतर तो आपने देखे, रावलपिंडी के शौक को आप कहाँ देख रहे हैं आजकल? रावलपिंडी का शौक बहुत अच्छा जा रहा है जी, और इंशाल्लाह ताला आगे चल के और बहुत अच्छा होगा। कबूतर बहुत अच्छा और ये कोशिश होगी हमारी कि रावलपिंडी का जो शौक है ना, ये पंजाब लेवल पे आए और पंजाब लेवल पे चले, ताकि पता चले लोगों को कि ये रावलपिंडी में भी शौक का जो मयार और क्राइटेरिया है वो कितना बुलंद है और कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे बहुत अच्छे कबूतर उड़ाने वाले, बहुत अच्छे कबूतर और बहुत अच्छे जो है ना शौक करने वाले लोग हैं और बड़े नाम हैं। लेकिन यह है कि कुछ ऐसी ना चंद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से करके ये थोड़ा सा माहौल बिगड़ा है। लेकिन इंशाल्लाह ताला सारे दोस्त इस बात के ऊपर एग्री हैं कि अब जब पंजाब में देखें ना, दूर दराज के जैसे गांव देहात, छोटे छोटे कस्बे, टाउन, उनके वहाँ पे शौक जो है ना इस हद तक है कि वो लोग पंजाब के चैम्पियन बन रहे हैं, तो ये पिंडी के क्यों नहीं हो सकते? अगर इनके साथ हम उड़ानों का कंपैरिजन करें तो जो असूल है ओपन कबूतर का, हमारे पिंडी में जब पहले दिन 11 कबूतर उड़ते हैं और पहले दिन जब दिन स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट तकरीबन हर दूसरे घर में सेंचुरी होती है। लेकिन ये तो पिंडी का एक मौसम ऐसा होता है कि यहाँ पे आंधी तूफान, मौसम नरम हो, रात रह जाते हैं। यहाँ पे ऐसे मतलब उड़ाने होती हैं लोगों की परवाज़ें कि उन्होंने 11 कबूतर उड़ाए हैं तो 5-5 कबूतर रात रह गए अगर मौसम ज़रा सा ठंडा हुआ है तो। बहुत दफा है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जी आंधी तूफान भी पिंडी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए करके अगर ये लोग हमारे जो है ना पिंडी में पंजाब के असूलों के मुताबिक उड़ाएं तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि हर दूसरे साल जो चैम्पियन है वो पिंडी का हो। यहाँ पे बहुत अच्छे हैं शौकीन, जैसे उस्ताद अशरफ अच्छी है, नुमान कियानी साहब हैं, इसी तरह उस्ताद औरंगज़ेब हैं और बेशुमार और लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जिनका शौक़ होता है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पंजाब में पिंडी का नाम जो है ना वो एक दफ़ा रोशन होगा। शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को ये याद नहीं है कि जब पहले मतलब जिस वक्त उस्ताद इखलाक खान वगैरह ये पंजाब का ऑर्गेनाइज करते थे
तो ख्वाजा अब्दुल रशीद साहब थे उस्ताद हलाल स्पोर्ट वाले, वो पिंडी में पंजाब की उड़ाते थे और कई दफ़ा पिंडी के लोग पंजाब के चैम्पियन बने। कई छतें हमारी पिंडी की जो पंजाब चैम्पियन बन चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी उम्मीद है अल्लाह से कि इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा शौक़ होगा हमारा। तो उस्ताद जी बात ये है, इसके लिए किसी को आगे आना पड़ेगा, अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप टीम वर्क बनाएं और उसको लोगों को इसको अवेयरनेस दें कि देखिए जी पंजाब कप में हम क्यों नहीं जा रहे। तो इस वजह से आप कुछ मीटिंगें मंगवाएं, कुछ करना पड़ता है, कुछ टाइम निकालना पड़ता है। यूनियन नहीं है ना, सबसे पहले बात है यूनियन बनाए यहाँ पे। हाँ नहीं इंशाअल्लाह ताला जी मेरी दोस्तों से बात हो रही है, मैं तो हर उस आदमी के घर तक जाने के लिए तैयार हूँ पिंडी शहर के लिए और इस शौक़ के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर पिंडी का शौक़ अच्छा होगा, पिंडी का नाम होगा तो सबकी इज्जत होगी और सबको जो है ना इस हवाले से करके होगा कि ताकि पता चलना चाहिए कि हम लोग क्यों पीछे रह गए हैं। हालांकि कबूतर परवरी में कबूतरों के हवाले से, कबूतरों की उड़ाने के हवाले से करके और शौक़ में नॉलेज के हवाले से करके मेरे ख्याल से ये किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। आप इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे देखेंगे कि पिंडी जो है ना वो एक ऐसी मिसाल बनेगी जैसे पिपला जो है ना पंजाब में क्या पूरे वर्ल्ड में एक मिसाल बनी हुई है। ऐसे ही है। तो उस्ताद जी आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों की गुफ्तगू से एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप कबूतर पकड़ के उड़ान जाएगा। ऑर्गेनाइज करते हैं पंजाब कप, सबसे बड़ा कप आप उड़ाते हैं, तो पिंडी वालों को आपने क्यों पीछे रखा हुआ है? नहीं पीछे नहीं रखा हुआ और जो है तो कड़वा सवाल, मकसद है कि आप आगे आप भी तो आए ना कम से कम। नहीं मेरी मुलाकातें हुई हैं पहले भी पंजाब कप में, पिंडी से लोगों ने हिस्सा लिया है, पिंडी इस्लामाबाद से, और अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। पर फिर कुछ जिस तरह मलिक महफूज साहब ने बताया कि कुछ गलतफहमियाँ, कुछ कवानीन और कुछ आप सियासत भी कह लें, फिर जो सख्त लफ्ज़ अगर हो जाए तो उस बिना पर मामलात फिर दुरुस्त नहीं हुए। और नहीं तो औरंगजेब भाई बड़ा अच्छा पंजाब लेवल पे उन्होंने रिजल्ट दिया, मेहताब शाह ने दिया और क्यानियों ने दिया, ठीक है, खालिद खटक है, इस तरह यानी सरदार परफॉर्म किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि ये ताली एक हाथ से नहीं बचती, ये मिल के कोशिश करने वाली बात है जो आपने कहा है। और मलिक महफूज साहब ने इस दफ़ा एक दफ़ा फिर इसका बेड़ा उठाया, उम्मीद है कि इस दफ़ा अच्छे इसके नताइज आएंगे। और लेकिन बात बताऊं क्या है, शौक़ को आगे ले जाने के लिए ना कुछ लचक भी दिखानी पड़ती है। ऐसे ही हर यानी आप ये कहें कि वक्त के साथ कवानीनों में भी तब्दीलियाँ लाना पड़ती हैं। ऐसे ही है। मौसमी हालात के मुताबिक चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो शौक़ है ना इसका मौसम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, उसके मुताबिक इसकी एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं। तो हमारी तो मेरी तो पिंडी वालों से यही रिक्वेस्ट है, दो ही रिक्वेस्ट हैं। तो पंजाब के कवानीन के मुताबिक अगर ये नहीं भी हैं तो दो काम करें, एक तो डेट पंजाब के मुताबिक करें, दूसरा पिंडी में फिक्स कबूतरों का शौक़ होता है। और अगर ये मेहरबानी करें तो जो पंजाब में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, जारी बात है जिस दिन उनका कोई कबूतर ज़ाया होगा तो उससे आगे वो अगर वो पिंडी में भी शौक़ कर रहे हैं तो अलग रंग लगा के, अगर आप कंधों पे ज़्यादातर रंग लगा होता है, परों में लगा होता है, यानी छाती पे आपने दूसरा रंग लगा दिया, आपका सब रंग चल रहा है। कि भाई ये पंजाब कप में ये शामिल है कि ये नीला वाला जो आया है, ये जो हमने डाला है, ये पंजाब कप में इसका आपसे ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छे सकता है। शौक़ की इब्तिदा दोबारा हो सकती है। औरंगजेब साहब ने तो पिछले साल भी हिस्सा लिया, कुछ और चतों ने भी लिया। असल में सिक्किम नज़र साहब ने हिस्सा लिया, बल्कि नज़र साहब ने भी उनकी जो छत थी, इसी तरह सूफी तरलई वालों ने भी लिया। बात बताऊँ क्या है, बात है कोशिश की। जो मलिक महफूज साहब कह रहे हैं ना कि अगर पिंडी में, अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, जितना पिंडी इस्लामाबाद में बड़ा शौक़ है ना, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है, कहीं भी पाकिस्तान में नहीं है। कहीं नहीं। लेकिन फर्क पता क्या है, मादत में आपकी बात काटो, आपने यहाँ चंद चीदा बड़े लोगों का नाम लिया, क्या ये उनकी विरासत है कबूतरबाजी? यहाँ बहुत अच्छे कबूतर आम लोगों के पास है, वजह ये है उनके सोच नहीं है, वो आगे नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। सर मैं लेकिन एक और बात, सबसे बुनियादी वजह यही है, आपने जिन लोगों का नाम ले लिया ना वो सारे नवाब लोग हैं, तो क्या ये उनकी मिरास है? नहीं, कोई हिस्सा मतलब ले हिस्सा ले रहे हैं। मतलब वो मैं आपकी आम बात पसंद को शहर नहीं है ना, मैं सब मादरत के साथ आपकी बात पे कर रहा हूँ आगे
देखिए उस्ताद अशरफ अच्छी जो है ना हाँ। वो बड़े महदूद मिसाइल के उनकी छत अगर देखें ना तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और कोई बंदा जो है ना वो यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा कि यार ये पिंडी में इतना बड़ा शौकीन आदमी है जिसकी छत और ये वसाइल हैं। लेकिन वो एक तसलसल है कि वो शख्स मुसलसल शौक कर रहा है, 20 साल से पिंडी में रेगुलर शौक कर रहा है, बादियाँ उड़ा रहा है, और उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, उसमें हो ये रहा है कि ये जो चंद नाम लिए ये वो है कि जो ऑलरेडी बड़े शौक में इन रहते हैं। मेरा कहने का मतलब यही था कि अगर देखें, एक मैं आपको बात बताऊँ, ये तारीख है ना पिंडी की, कि हमारा पिंडी का जो शौक होता था वो हमेशा हिट का शौक होता था, आखिरी कबूतर का होता था। लोग 7 कबूतर जब उड़ाते थे तो एक एक भी रह गया था, लोगों ने एक बाजी कबूतर के साथ बाजियों के फैसले किए। बहुत दफा होया। अब हुआ ये कि हमने इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर ली, हमने इसमें कर दिया एवरेज। अच्छा, उसमें होता ही है कि एवरेज जो है ना उसी आदमी की बनेगी जिसके कबूतरों की तादाद पूरी होती है। आज ये देखें कि पिपला वालों का जो शौक है वो इसलिए करके सबसे आगे हैं कि वो हर रोज़ 11 कबूतर उड़ाते हैं। चाहे उनके तूफान में 8 कबूतर भी चले गए हैं, लेकिन अगले दिन 11 उड़ाए और अगले दिन उनकी फिर सेंचुरी हुई है। मलिक साहब, आपसे बेहतर पिंडी का कोई नहीं जानता। पिंडी की कबूतरबाजी सबसे ज्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जी। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौसम पिंडी में खराब होते हैं। सर किसी एक दिन अगर 45 है, हो सकता है अगले दिन 35 हो। अच्छा जी, बात ये है, ये सियासत अपनी जगह पर। नहीं, एक सवाल का जवाब देने रियासत साहब आपकी बात कर रहा था। लेकिन ये एक तल्ख मैं बात करने लगा हूं। आपने बड़ी अच्छी बात की, पर बात बताऊं क्या है, आम खिलाड़ी का दिल चाहता है हिस्सा लेने का, उसकी मजबूरियां बताऊं क्या है। उसकी मजबूरी ये है कि उसकी बात सुनी कहाँ जाएगी। यही जुल्म है ना। नहीं, इसीलिए मलिक साहब को हमने कहा। नहीं, बात बताऊं क्या है, बात ये होता है कि उसने, आप देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ पंजाब कप की कामयाब बुनियाद ये भी है कि जब तक आप अपने इलाके में शौक नहीं कर रहे ना, आपकी पहचान और शनाख्त नहीं है। ठीक है, बात ये है कि वो उनकी मजबूरियां ये आ जाती हैं कि यार हमने इलाके में, हमें पहले ही कह दिया जाता है कि खबरदार वहाँ हिस्सा लिया, या हमसे करना है तो वहाँ नहीं कर सकते आप। सही कह रहे हैं, बिल्कुल फिर वो सही। रुक जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज मेरी पिंडी वालों से, इस बात को पिंडी वालों से गुजारिश है कि बुरा ना मानिएगा, एक गुजारिश है। आप लोग कहते हैं कि जी हम फिक्स कबूतरों का शौक करते हैं, बड़ी माजरत के साथ ये जो आप लोगों का कानून है ना, कड़ियाँ डाल के आप उड़ाते हैं, हकीकी मैंने फिक्स कबूतर बताऊँ क्या है। फैसलाबाद में 25 साल से तो मैं देखता आ रहा हूँ, यानी शुरू से वहाँ पे ना फिक्स कबूतरों का शौक हो रहा है। 11 कबूतर उड़ते हैं, ये जो पर्चे पे नहीं आया वो खत्म हो गया, खत्म हो गया। सही है, हमारा जबकि डल जाता जो रात रह गया बात खत्म हो गई, जो बाहर बैठ के कट के बात खत्म हो गई, जो पर्चे पे नहीं आया वो खत्म हो गया। पिंडी में ये है कि जी आप कबूतर पर्चे पे नहीं आया, कोई बात नहीं, आप अगले दिन कहीं से भी जाके जो यहाँ मुझसे बोलते हैं। क्यों जी मलिक जी? ये देखे जी कबूतर, और ये पुराने कबूतर हैं इनके, मुझे दिखाएं। ये देखे जी, ये इन्हीं में से बनी हुई है। ये इनमें से बन गई। ये माशाल्लाह, वो टीडी है। ये देखिए दूसरे कबूतर हैं, पुराने गोल्डन मोतियों वाले कबूतर, समझे जी। ये है इनकी पहचान, रावलपिंडी की असल कबूतर है माशाल्लाह। दोस्तों, मैंने आपको शौक दिखाया, और सबसे खूबसूरत कबूतर कमाल और आने से ये देखिए, बहुत याद है फ्रांसी को। बेहतरीन कबूतर, बेहतरीन इतने नस्ल। हसीन कबूतर मतलब जी मैं जिंदगी नहीं देखी। अभी यहाँ से हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।